Hello student, good morning. Student, at our last turn, we have started our second lesson, that is matter around us pure? कि हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट हैं क्या वो प्योर हैं क्या? In this lesson, we were going through our topic the solution, in which we have studied the definition of the solution. We have knew that solution is actually the mixture of the solute and the solvent. Today student, we will study about the properties of the solution. Now our next topic is the properties of solution, in which first is the solution is the homogeneous mixture. सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है. होमोजेनस मिक्सचर मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन are evenly distributed or particles of the solution are uniformly mixed. In the solution there are the solute and the solvent, so we can say here the particles of the solute are uniformly mixed into the solvent, or we can say that the particles or solute are evenly distributed in the solution. So the first character of the solution is that solution is the homogeneous mixture. Second, particles of solution in the size are less than 1 नैनोमीटर. सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. सो दे कैन नॉट बी सीन बाई द नेक्ड आईज. हम इनको हमारी नेक्ड आईज मीन्स एक डायरेक्टली आंखों से मीन्स वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक द माइक्रोस्कोप. तो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम उनको नेक्ड आईज से नहीं देख पाते हैं. थर्ड, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी particles cannot be separated by filtration. फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं मिक्सचर से. एंड these particles means they don't settle down when solution left undisturbed. जब इस सॉल्यूशन को हम कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो ये पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. So student, there are the properties, and fourth is these particles don't scattered. ये जो पार्टिकल है ये they don't scattered to light. ये लाइट के बीम को या they don't scattered to beam of light. लाइट के बीम को ये स्केटर्ड नहीं करते हैं. सो द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. यदि किसी सॉल्यूशन में हम लाइट के बीम को यदि इंसिडेंट करवाते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन डोंट स्कैटर टू बीम ऑफ लाइट. So student,
these are the properties of the solution. First is the homogeneous mixture. It is the homogeneous mixture. Second, particles of solution are less than in the size, less than 1 nanometer. And third, particles cannot be separated by filtration. They don't settle down if left undisturbed. And fourth is that they don't scatter the beam of the light. So beam of light is not visible in the solution. Now our next topic is the concentration of the solution. Now the concentration of the solution. Concentration of solution actually is the amount of solute. Concentration of the solution is the amount of the solute present in given amount of सॉल्यूशन. जो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है कि सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. और इन अनदर वर्ड्स amount of solute present in or dissolved in solvent कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है उसकी कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व है. सो स्टूडेंट, वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द टू वेज. And here two ways are the concentration of solution is equal to amount of solute की solute की कितनी क्वांटिटी है अपॉन amount of सॉल्यूशन की अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है और सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसके द्वारा हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड अनदर वे इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट की क्वांटिटी से सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है उससे भी हम कंपैरिजन करके हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, हाउ कैन वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इन द परसेंटेज. यदि हमें परसेंटेज यदि निकालना हो तो वी हैव द टू मेथड. फर्स्ट इज द मास बाय mass by mass method, and second is the mass by volume. So first is the mass by mass percentage of the solution is equal to mass of solute upon mass of solution multiply by the 100. By this formula we can calculate the concentration of the solution. This method is called the mass by mass percentage of solution, and second method is the mass by volume, in which mass of solute upon volume of solution
multiply by the 100. By these formulas we can calculate the percentage of the concentration of any solution. So student, it is the concentration of the solution. Now our next topic is the what is the saturated solution, what is the unsaturated solution, and what is the solubility. So first we will study about the saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. इफ वी हैव टेकन द 100 ml ऑफ द वाटर एंड इफ वी ट्राई टू डिसॉल्व द सम क्वांटिटी ऑफ द सुगर, देयर विल बी द such condition, after some time there will be the such condition in which we cannot dissolve the more amount of the sugar in the water. हम जब एक फिक्स क्वांटिटी वाटर के लिए है उसमें हम शुगर डिसोल्व करते हैं, तो कुछ समय बाद में यदि हम शुगर लगातार उसमें ऐड कर रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद में हम शुगर को उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं. मीन्स वो कंडीशन जिसमें कि किसी सॉल्वेंट की कैपेसिटी तक हम उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसकी कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ए सॉल्यूशन हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ए solution has much solute as it is capable. कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट इतना होता है जितना कि वो कैपेबल होता है. मीन्स उसमें अब हम और ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन. जब किसी सॉल्यूशन में हम और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड या उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी? इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ solute in saturated solution is called the solubility. सैचुरेटेड कंडीशन में जो मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की जो कि उसमें डिसॉल्व हो रखी है उसको हम उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहते हैं. एंड व्हाट इज द अनसैचुरेटेड solution? Just opposite of the saturated solution. What is the unsaturated solution? Less quantity of solute than its सैचुरेशन लेवल. कोई भी सॉल्यूशन है उसका जो सैचुरेशन लेवल है उससे सॉल्यूट की क्वांटिटी यदि कम होती है, मीन जितना उसमें उसकी कैपेसिटी है उससे कम सॉल्यूट यदि मिला हुआ है तो उस सॉल्यूशन को हम
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव studied about the properties of the solution, concentration of the solution, and about the saturated, unsaturated solution and the solubility of the solution. You have to revise it, learn it. Thank you.